Here we go. उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो, हे हे ओ हो हा 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 हा, ओ ही हा हा हा, हे ओ हा 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 हा, ही हंसो और हंसाया करो, ला 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 ला, हे हो हा 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 हा, ही हो, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो, ha 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 ha, ही la 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 la, he ho ha 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 ha, ही ha 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 ha. Keep smiling, everybody. Hi, welcome. My name is Vishal Jain, and I am back with you live on Everest Yoga page with today's session. Thank you so much, everyone, for connecting in and joining this Facebook Live. So first of all, my highest thanks to Everest Yoga, Mr. Sanjeev Tyagi, जिन्होंने ये मिशन कोरोना विजय शुरू किया है, और ये जो 50 आवर्स सेशन हो रहा है, जो एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ एक हवन है, उसमें मेरी एक छोटी सी विभूति है 1 घंटे के लिए. और रियली सैल्यूट एंड हैट्स ऑफ टू द होल टीम एंड एवरीवन हु इज जॉइंड इन एंड ही इज कंट्रीब्यूटेड टू मेक अ डिफरेंस into his purpose and mission of spreading health, hygiene, and contributing to society during these uncertain and challenging times. And yeah, so today I just will start by introducing myself once again. So I am Vishal and I stay in Canada. So I'm currently pursuing my master's in global management. And I am into this journey of so-called curiosity of creating a life which is full of celebration. And मैं उस यात्रा में हूँ और 15 साल से उस यात्रा में हूँ, और उसी यात्रा को मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा मिशन है to create a planet where every human being is living a life which is full of possibility of celebration. और मैं शेयर करता हूँ, और मुझे लगता है कि शेयरिंग इज केयरिंग. सो बेस्ट चीज़ अगर आप किसी को दे सकते हो तो आप उनसे शेयर कीजिए. तो मैं एक्चुअली कोई टीचर इन द सेंस एक पर्टिकुलरली किसी चीज़ के लिए नहीं हूँ, या कोई ऐसा कह लो गुरु नहीं हूँ, बट मैं एक सह यात्री हूँ, और मेरे जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं, और अनुभवों से मैं डिस्कवर करता हूँ चीज़ें, और वो चीज़ें मैं जब डिस्कवर करता हूँ उससे मैं अपने लिए तो फ़ायदा लेता ही लेता हूँ. और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जब आप शेयर करते हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन इन योर लाइफ, इन देयर लाइफ, एंड देन दे कैन ऑलवेज टेक लिटिल एडवांटेज इफ यू शेयर, राइट? सो दैट्स हाउ आई ब्रिंग इन माई सो कॉल्ड self-learnings and discovery of life, and I put that into my lifestyle and create a life which is worth celebration and laughing. So I know it's 2 a.m. in India, and a lot of you are sleeping right now and would not be able to join in live, but no problems. Absolutely, that's totally fine. Enjoy your sleep, and then later on you can visit this video and definitely have a look at it and try to get what best possible value you can. So as my forte is of my
journey into meditation and a lot of transformational programs what I've gone through in so many years of my life. So everything put together, so that's what I bring in on my plate to offer you. So last session जो मैंने किया था, that was on why, how and what of meditation, laughter yoga and meditation and gibberish. So I do hope that every one of you had a chance to go through that and then practice that, and it's giving you great energy levels, and then you are training your mind to be mindful and aware through the meditation techniques which I talked about last time. So the gibberish and the laughter gets you charged up. आपका वो होमवर्क हो जाता है और वार्म अप हो जाता है, और उसके बाद आप जब ध्यान में जाते हैं, आप मेडिटेशन में जाते हैं, तो आपके माइंड को आप ट्रेन करते हैं किस तरह से माइंडफुल होना है और किस तरह से अवेयर होना है. सो ये जो चीज़ें थी मैंने लास्ट अपना जो सेशन था उसके अंदर आप लोगों से मैंने शेयर करी थी. सो उसी की कंटिन्यूएशन में आज का जो सेशन है, सो मैं उसके ऊपर रिलेटेड टॉपिक लिया है, और मेरे टॉपिक का नाम है हाउ टू रिचार्ज योर लाइफ्स बैटरी full of power and happiness instantly with simple techniques. तो आज का जो मेरा विषय है, जो मेरा टॉपिक है, हमें अपनी जिंदगी की जो बैटरी है उसको इंस्टेंटली कैसे चार्ज करना है ताकि हमारी जिंदगी में वर्कबिलिटी हो. जब वर्कबिलिटी की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि हैप्पीनेस हो, पूरी पावर हो, पूरा सेल्फ एक्सप्रेशन हो, अभिव्यक्ति हो, ताकि जो हमारा नेचुरल स्वभाव है, राइट, हमारा स्वभाव क्या है जिसे हम बोलते हैं जो हमारा ट्रू सेल्फ है. सो दैट्स बेसिकली इज 7 वैल्यूज, राइट. सो जैसे हम बोलते हैं कि हम एक सत्वगुणी आत्मा है, राइट, और उसमें हम शांति स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, राइट. सो वी आर शक्ति स्वरूप एंड लव एंड ब्लिस एंड लॉट ऑफ दीज वैल्यूज. सो दैट्स आवर बेसिक ट्रू सेल्फ, राइट. एंड देन आवर लाइफ्स बैटरी is fully charged when we are living from our basic true self, and how it gets drained out is जब हम अपने स्वाभाविक स्वरूप से हटकर हम अपना जो सर्वाइवल का स्वरूप है उसमें चले जाते हैं, और जब हम अपनी आइडेंटिटी, और जिसे मैं बोलता हूँ या ईगो बोलते हैं, और बहुत सारे चीज़ें हम बोल सकते हैं, जब जिंदगी वो हमारे को टेक ओवर कर लेती है तो वहाँ से फिर हम जो है एनर्जी ड्रेन आउट शुरू होनी होती है, हमारी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होती है. तो फिर ऑब्वियसली धीरे धीरे जब वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं तो हमारी जो हैप्पीनेस है वो कम हो जाती है, ड्रेन आउट हो जाती है. तो अब उसको हमको किस तरह से रिचार्ज करना है इंस्टेंटली, और सिंपल टेक्निक्स है. उसके लिए कोई ऐसा कोई लंबा चौड़ा आपको जाना नहीं, कहीं कोई कोर्स नहीं करने की जरूरत है. आप अपनी ज़िंदगी में घर बैठे इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो आपने देखा है कि आजकल ऑब्वियसली जब गैजेट्स का ज़माना है तो हम लोग पूरा टाइम कितना अपने फ़ोन्स पे या लैपटॉप्स पे होते हैं, और बैटरी लाइफ बहुत क्रिटिकल हो जाती है, राइट. तो हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि हमारी बैटरी पूरी रहे, और हम ऑब्वियसली उसको बार बार चार्ज करते हैं. तो उसी तरह से मैं आज की जो ये कॉन्वर्सेशन आपसे बातचीत करूँगा, इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि हमारी लाइफ की बैटरी क्या है, और वो हमें कैसे मालूम पड़ता है कि उसकी पावर ऑफ होगी. बड़ा सिंपल है कि जब भी मैं और आप खुश होते हैं, राइट, जब फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, एकदम हैप्पी होते हैं, मस्त होते हैं, राइट, कोई चिंता नहीं होती, देयर इज नो वरी एट ऑल, राइट. एंड देन हम अपना कर्म कर रहे होते हैं अपने स्वाभाविक रूप से, और वो हमारी फुल बैटरी चार्ज है. और दिन में बड़े सारे फेज आते हैं जब इस तरह से होती है. उसके बाद कुछ होता है, राइट, कुछ होता है तो हमारा जो मन है वो रिएक्ट करता है, और फिर हम जैसे छोटी छोटी चीज़ों में हम देखते हैं कि कुछ यहाँ गलत है, राइट. सो गलत किसके साथ है? हमने कोई न्यूज़ देखी तो गवर्नमेंट गलत है, हमने प्रशासन को देखा कि गलत है कोरोना के लिए जो हम ये सब स्टेप्स ले रहे हैं. तो ये सब चीज़ों में जब हम अपने मन में चीज़ें बोलते हैं यार कुछ यहाँ गलत है, तो डेफिनेटली हमारा जो है पीस उस वक्त नहीं रहता, हम अपने स्वाभाविक रूप से बाहर आ जाते हैं. और उसी तरह से आप और देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जब आप देखोगे, एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, ये सब चीज़ें जब आती हैं, सो
डेफिनेटली ये हमारी जो लाइफ की बैटरी है जो उससे एनर्जी सक करती है, उसको ड्रेन आउट करती है। और इसी को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं, इसमें गहरे उतरते हैं, तो सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टूल क्या है कि आपको ये सेंस करना है, राइट? ये सेंस करना है कि मेरी जो है ना बैटरी ड्रेन हो रही है और मुझे ड्रेन होने नहीं देनी है। तो वो आप सेंस कैसे कर सकते हैं, है ना? डिफरेंट आप अपने जो है रूल्स बना सकते हैं। आप अपने कुछ चीजें क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप सेंस कर सकते हैं। मेरे लिए क्या होता है, जब भी मेरा नेचुरल स्वभाव क्या कि मैं एकदम मस्त रहता हूँ, खुश। मेरे को चाहिए कि यार कोई टेंशन नहीं चाहिए, एकदम खुश रहें, नाचते गाएं, हंसते रहें, राइट? सो वो मेरा नेचुरल स्वभाव है। अब जब भी कोई चीज़ करता हूँ तो उसके साथ साथ मेरा नेचुरल भी मेरा ना फियर आता है, फियर ऑफ फेलियर आता है। तो मेरा सेंस होता है कि मुझे एकदम मेरी बॉडी सेंसेशन चेंज हो जाती है, मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं और मुझे एक प्रेशर लगता है, एक हैवीनेस लगती है और मुझे अच्छा नहीं लगता, एकदम अनईजी हो जाता हूँ, मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। तो मेरा वो सेंसर है पहला, तो मैं सेंस कर लेता हूँ उसको कि नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, जब हमने सेंस कर लिया तो हमको स्कैन करना है, राइट? अब स्कैन करना है कि अब हो क्या, कोई भी परिस्थिति है, सिचुएशन है, कोई किसी पर्सन के साथ है, घर पे है, काम पे है, बाहर है, कहीं भी है, दोस्तों के साथ है, तो हमको बड़ा जरूरी है कि हम अब उसको, जब हमने सेंस कर लिया है हाँ अब गड़बड़ है, अब मुझे क्या करना है, स्कैन करना है। अब स्कैन की जो स्टेज होती है, अब उसमें क्या होता है कि आप गहरे उतरते हो, राइट? आपको इंट्रोस्पेक्शन करनी है, भीतर जाना है। और जब आप स्कैन करके देखते हो कि यार क्या चल रहा है, इम्पैक्ट क्या हो रहा है मेरे पे अभी इस वक्त, मैं अपनी फुल पावर में नहीं हूं, मैं अपना जो स्वरूप एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूं, तो फिर आपको उसके बाद क्या करना है, कन्फ्रंट करना उसको। अब कन्फ्रंटेशन जो है ना वो बहुत पेनफुल होती है। आइडेंटिटी हमारी ना हमारे को रोकती है कन्फ्रंट करने से। अब आई डोंट नो, आपने और मैंने, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी भी हमारे को लाइफ में बॉयल हुआ है और जैसे कई बार बाल तोड़ बोल देते हैं, तो क्या होता है हमको पता नहीं लगता, जब छोटा होता है वो थोड़ा इरिटेशन होता है, इचिंग होती है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, राइट, तो उसमें पेन होने लगती है। पेन होती है क्यों? उसमें पस पड़ जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है और फिर हमें बहुत तंग करता है, लिटरली। जब बहुत तंग करता है देन फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोलता है इसको प्रिक करना पड़ेगा, इसमें से पस या मवाद निकालनी पड़ेगी, क्लीन करके फिर आपका ये वूंड हील होगा, नई स्किन आएगी। तो उसी तरह से अब ये जो स्टेज होती है, अब हमें पता है बिना पस निकाले और बिना प्रिक किए वी विल नॉट बी एबल टू हील दैट वूंड, इट विल कीप ट्रबलिंग अस, इट विल बी वेरी वेरी पेनफुल एंड वो इन्फेक्शन बहुत स्प्रेड हो सकती है। एग्जैक्टली द सेम वे जो कन्फ्रंटेशन है ना, वो पार्ट है, बिकॉज वो बड़ा पेनफुल है, क्योंकि जब आपको अपने आप को आईना दिखाना है और अपने आप को सच बोलना है, अपनी जो इनऑथेंटिसिटीज हैं, इनऑथेंटिसिटी में बात करता हूं, उसका मतलब क्या है? इनऑथेंटिसिटीज है कि जो हमारा बनावटीपन, जो हमने मुखौटा पहना है और जो हम स्वाभाविक नहीं है और वो हम चीजें कर रहे हैं, राइट? तो वो कन्फ्रंटेशन स्टेज में आना पड़ेगा और अपने आप को वो पेन, जो पस निकालने का प्रोसेस है, वो करना पड़ेगा। ये हो गया स्कैन की स्टेज। फिर स्कैन की स्टेज के बाद जब तीसरी स्टेज होती है, अब हमने कन्फ्रंट करके, अब तो फिर उसके बाद क्या, एक्शन है ना। एक्शन में जब हमने क्या किया, उसको ऑपरेट करके, प्रिक करके, एंटीसेप्टिक लगा के, हील करके वूंड बांध दिया और वो धीरे धीरे अपने आप हील होके परफेक्ट हो गया। उसी तरह से जब हमने अपनी जिंदगी में ये चीजें देखी तो हमारे पास सोर्स हो गया कि अब हम वहां जाके अपना जो है पावर प्लग इन करें, जो अपने स्वाभाविक रूप वाला जो अपना व्यक्तित्व है वो लाएं और उससे फिर उस चीज का एक्शन लें। तो ये आज के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट है। फर्स्ट आप सेंस करेंगे, आपने अपना सेंसर डेवलप करना है, उसके बाद आपने उसको स्कैन करना है, उसके बाद तीसरी चीज जो है आपने उसको स्कैन के बाद कन्फ्रंट करके इंपैक्ट देख लिया और उसके बाद उसने आपको एक्शन लेना है, दोबारा अपना पावर हाउस जो चार्जर स्वाभाविक अपना उसमें लगाना है, बैक इनटू एक्शन। तो आपकी इससे बैटरी जो है वापस चार्ज हो जाएगी, देन यू विल हैव वर्केबिलिटी, यू हैव हैप्पीनेस, पावर, वापस आप अपने नॉर्मल स्वरूप में क्विकली आ सकते हैं। सो अब इसके लिए जो मैंने बोला, मैंने 2 टेक्निक्स इन्वेंट करी और बड़ी सिंपल। मैं क्या करता हूं, मैं ना बहुत सारा
इंट्रोस्पेक्शन करते रहता हूँ। मेरा दिमाग टोटली इसी चीज़ में चलते रहता है, यार ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। तो मैं देखते रहता हूँ हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, जो सृष्टि में क्या हो रहा है, और किस तरीके से हम उसको, उन अनुभवों को अपने ज़िंदगी के अनुभवों में amalgamate कर सकते हैं, राइट। वी कैन इंटीग्रेट दैट एंड देन वी कैन क्रिएट आवर टूल्स which can really help us, right, to recharge our life's battery instantly. So let's start with the first one, right? Okay, so आप और मैं, बहुत सारे लोग चश्मा पहनते हैं, लेंस पहनते हैं, और हम लोग ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास अपने विजन और आई टेस्टिंग के लिए जाते हैं, राइट। और काफ़ी लोग आप इस प्रोसेस से गुजरे होंगे और आपको पता है क्या होता है। तो मैं भी एक बार गया, मुझे थोड़ा सा ऐसे रीडिंग में, क्योंकि बहुत सारा अभी ये यूज़ हो रहा है फ़ोन और पास की रीडिंग में ना, कुछ चीज़ें फ्लिम्जी, हेजी, अनक्लियर लग रही, तो मुझे लगा आई शुड ऑल्सो गो। तो मैं गया ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास। अब उसने मुझे क्या चेयर पे बिठाया और एक जो भी उनकी आई टेस्टिंग, विजन टेस्टिंग मशीन होती है, उसमें मैंने चेन रखी, और देन दे पुट स्टील और एल्यूमिनियम फ्रेम एंड दे टोल्ड मी टू लुक स्ट्रेट ऑन टू जो छोटे छोटे वर्डिंग्स होते हैं एंड स्टार्ट रीडिंग। तो मैंने पढ़नी शुरू करी। जो छोटी पहली लाइन थी, मुझे लगा कि नहीं, मेरे को नहीं पढ़ा जा रहा और मैंने कुछ गलत पढ़ा। फिर उन्होंने क्या किया, एक लेंस पहले मेरी लेफ्ट आई पे रखा और फिर बोला अब पढ़ो। मैंने कहा नहीं, अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, हेजी है, फ्लिम्जी है, लाइक यू नो। फिर उन्होंने दूसरा लेंस चेंज किया, फिर उसके बाद दूसरा लेंस चेंज किया। मैं देखता रहा और देन धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी क्लैरिटी बढ़ती गई, मेरा विजन बेटर होता गया, मैं कंफर्टेबल हो गया। सो उन्होंने ये प्रक्रिया मेरी दोनों आइज के साथ करी, लेफ्ट एंड राइट, और उसके बाद उस प्रक्रिया में मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया कि भैया आपकी जो है, जो रीडिंग आई है, जो क्लोज रीडिंग का जो विजन है वो वीक है, तो उसके लिए आपको एक्शन लेना है, आपको लेंसेज, द ग्लासेस पहनने हैं, जिससे आपका ये वर्केबिलिटी आ जाए, राइट। ओके, ग्रेट। सो एग्जैक्टली, सो देन आई गॉट इट, इफ दिस ऑप्थेमोलॉजी टेस्ट कैन change our eye lens, right? So my eye vision can be better, and then I can have workability and then clarity, and then I'm at ease and comfort and I'm happy, right? Reading. Similarly, हमारे मन का भी चश्मा है, हमारे एक मन का लेंस है, राइट। तो हम पढ़ते तो आंख के चश्मे से हैं, लेकिन हम जिंदगी जीते हैं अपने मन के चश्मे से, उसमें बहुत सारे लेंसेज हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये बड़ी अच्छी टेक्निक है, जो हम आई और विजन टेस्टिंग करते हैं, क्यों ना मैं अपने माइंड की लेंस टेस्टिंग करूं, वो फिल्टर जिससे मैं दुनिया देखता हूं और जीता हूं। आंख ने देखी और माइंड ने उसमें बहुत सारी, मुझे उस लेंस ने इंटरप्रिटेशंस दी और मैंने उसी से अपने एक्शंस करने शुरू करे। तो बहुत अच्छी बात। तो ये जो टेक्निक थी मैंने अपने माइंड के साथ लगानी शुरू करी। तो मैंने कहा चलो, अब सबसे पहले ऑब्वियसली मेरे को तकलीफ होनी चाहिए ना, जब मेरे को पढ़ने में तकलीफ होती तभी मैंने ये टेस्ट पे गया। अब उसी तरह मेरे को जिंदगी में जब तकलीफ होगी, तकलीफ क्या, जब मुझे इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, अनईजी हो रहा हूँ, डिस्कम्फर्ट आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, डर आ रहा है, नर्वसनेस आ रही है, मतलब ये सारी चीजें, ये क्या है, ऑब्वियसली दीज आर व्हेन फ्लिम्जी रिलेशनशिप में है किसी के साथ, राइट। मुझे धुंधलापन दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही यार ये बंदा या बंदी, लाइक यू नो, व्हाई दे आर सो, they are like the person they are, like why they are like this. Similarly for any situation, right? So मैंने क्या किया, मैंने इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू किया। कैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल, ठीक है। सो थोड़े दिनों पहले की बात है, मैं एक शॉपिंग मॉल में गया ग्रोसरी करने, जब ये लॉकडाउन के टाइम पे, अपनी वाइफ के साथ, और हम वहाँ पर एक कपल को मिले और वो मेरी वाइफ की फ्रेंड है और मैं उसके हस्बैंड के साथ, मेरी हेलो हाय हुई, बट बड़ा एक फॉर्मल हेलो हाय हुआ। उसके बाद मैंने ना एकदम बड़ा डिस्कम्फर्ट और अनईजी फील करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही वो हुआ, मैंने मेरी आंख में उससे मिला के, मतलब आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी टू बी इन दैट पर्सन्स प्रेजेंस, एंड इमीडिएटली मैंने वो सेंस किया। मैंने सेंस किया यार कुछ तो जो है मेरा स्वाभाविक रूप, जो हु आई एम इज नॉट समवन हु वुड लिव लाइक दिस। सो मैंने इमीडिएटली सेंस करा। तो मैंने क्या किया, वहीं पर खड़े खड़े, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका माइंड ट्रेन हो रहा होता है मेडिटेशन, तो आपकी माइंडफुलनेस और अवेयरनेस बढ़ती है। तो तभी मैंने देखा कि यार अभी मैं अंदर गया,
मैंने देखा कि मैं क्या लेंस से उसको देख रहा हूँ, तो उस लेंस में था नो ये तो बंदा सही नहीं है, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने ऐसा किया, ऐसा किया, गलत किया, तो आई वॉज मेकिंग दैट पर्सन रॉन्ग एंड दैट लेंस was giving me all my that feelings and body sensations and my even body language with that guy, right? Similarly he was also the same way. तो suddenly मैंने क्या किया, मैंने अपना वो माइंड का लेंस टेस्टिंग शुरू कर दिया, टेस्ट। तो मैंने देखा कि मैं अभी इसको इस वाले लेंस से देख रहा हूँ, और मैं कौन से लेंस से देख सकता हूँ। सो इमीडिएटली वहीं खड़े खड़े मैंने अपना अंदर माइंड में लेंस चेंज करा। मैंने लेंस चेंज किया कि ओके नो, सो व्हाट एवर happened and then whatever he did because वो भी तो एक लेंस से ही जिंदगी देख रहा था, उसी से उसने एक्शन लिए। सो मेरे को ये लगा कि मैं उस वक्त एक कंपैशन का लेंस ला सकता हूँ। मैंने इमीडिएटली एक कंपैशन का लेंस लाया और उसके अंदर मुझे भी वो मेरे जैसा ही लगा, वही एक ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा, कि हम दोनों सेम है उस कंपैशन के लेंस में। तो इमीडिएटली जैसे ही वो लेंस आया मेरी बॉडी सेंसेशंस गायब होगी, जो पहले वाली थी जिसमें डिस्कम्फर्ट और डिसीज, वो एक अनइजीनेस थी, और फिर मैं एकदम से कंफर्टेबल हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, मैं अपनी कॉन्वर्सेशन नॉर्मल हो गई उससे, और वहीं खड़े खड़े मैं जो है वापस एकदम से अपनी जो मेरी बैटरी ड्रेन आउट और डिप्लीट हो रही थी, राइट, वो वापस चार्ज हुई और आई वॉज बैक इन टू माई सेल्फ, यूजुअल सेल्फ, पावर, हैप्पीनेस, और एकदम वैसे। सो ये जो टेस्टिंग, माइंड की जो लेंस टेस्टिंग है, ये टेस्ट जब मैंने अपनी जिंदगी में करने शुरू किया तो इसका बहुत बड़ा ये एडवांटेज हुआ कि मैं कहीं भी जब भी मेरे को ये शक होती है मेरी, यू नो, बिकॉज जो आइडेंटिटी की भूख है ना, जो फूड आइडेंटिटी है, राइट, मैं सही तुम गलत, वाई डिड यू दिस, शुड दिस एंड शुड नॉट, है ना, इसने मेरे से ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ड्रेन करती है, वो सक करती है हमारी एनर्जी। और जब मैंने अपना लेंस कंपैशन का लाया, लव का लाया, उससे मेरी वापस बैटरी पावर चार्ज जो डिप्लीट हुई थी, तो एवरीथिंग वाज ओके। सो व्हाई आई कुड डू दिस? I could do this only because I am training my mind to be mindful and self-aware through meditation. So meditation really helps me to bring this whole thing into my life when I am very comfortable to sense and scan and change the lens of my mind and recharge my life's battery and get full power, freedom and self-expression. अपनी अभिव्यक्ति, अपना freedom, अपना natural self वो ला सकते हैं। So exactly, so that's what I always tell people. But मेरे को ना वो एक स्टेज आनी जरूरी है कि जब मैं इसको सेंस करना शुरू कर सकूं, और सेंस करने के जब मैंने मेडिटेशन अपनी प्रैक्टिस और रूटीन बनाई, तो उसके पहले मेरे लिए ये चीजें यार नॉर्मल थी। इट वाज लाइक ठीक है यार, आई डोंट हैव टू मच बॉदर अबाउट इट, होता है यार, वो ऐसे ही है। एंड देन फिर हमने अपना चले गए वहां से, ध्यान बटा लिया, बट कहीं ना कहीं वो पीछे आपके माइंड में चीजें तंग करती हैं। उसका वेट है, बहुत बड़ा वेट, मैं फील करता हूँ, उसका इतना बैगेज है, आप जो मर्जी कर लो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे वापस, तो वो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए मेडिटेशन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, माइंडफुल अवेयर होने के लिए अपने माइंड को ट्रेन कर लेंगे, ताकि ये चीज़ें जब हमारे ज़िंदगी में रियल लाइफ सिचुएशंस आती हैं, राइट, तो उस टाइम पे हम इसका एडवांटेज ले सकें। वो जो मसल डेवलप किया हमने, यहाँ यूज़ करना उसको, राइट, खाली ये नहीं कि मतलब हम ध्यान में बैठ के हमने उसी दुनिया में रहना है, नो, दैट्स नॉट व्हाट मेडिटेशन इज एज पर मी। जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसको यूज करना है अब रोज, जो हमारी ये जो माइंड की गेम है, और बार बार इसको प्रैक्टिस में लाना है। दैट्स हाउ क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट इट इज। अब मेरे आपको यही एक रिक्वेस्ट है, विनती समझ लो, कि सब लोग ना सबसे पहले उसका जब वो मवाद हो, जो पस का पेन और कन्फ्रंटेशन है ना, वो स्टेज देखो, तभी आपसे मेडिटेशन की प्रायोरिटी बनेगी, और तभी आप ये जो है ना, जो मैं आपको टूल्स और टिप्स दे रहा हूं कि किस तरह से टेक्निक्स लगानी है, तो आप 5 मिनट में आपकी 100% बैटरी, मेरी गारंटी है, चार्ज कर सकते हो, कि मैं कर सकता हूं। तो आप लोग तो बहुत सारे और इतनी सब चीजें कि आप धनी हो, योग में हो, और बहुत सारा ज्ञान है, तो आप तो डेफिनेटली मच बेटर जल्दी इसको कर सकते हो, राइट। सो start practicing these small tips, and then you will see a profound and everlasting difference. I have seen that, and I have drastically improved upon my quality of life, and then which I am loving it, right, because these of all these practices. So another thing, right, so this was one
So this I just did a recap. So like how we do our eye vision testing, so this is our mind's lenses testing technique which you can practice regularly. Okay, so इसी तरह से जो दूसरी टेक्निक है, तो हम अभी फिर एक छोटा सा पॉज लेते हैं, कि मैं चाहता हूँ कि ऑब्वियसली एक आप जब योगा कर रहे होते हो सेशन में, तो ऑब्वियसली यू आर डूइंग इनटू एक्शन, जब आप बोल रहे होते हो तो लाइक एक फ्लो में आप लोगों को थोड़ा सा वो पॉज भी होना चाहिए, बिकॉज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन. सो लेट्स टेक 1 minute क्विक ब्रेक एंड देन अगेन डू. उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, दिस लाइफ कभी खुशी कभी गम, हंसो और हंसाया करो, ला 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 हे हो हा 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 हु ही ही हो हा 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 ही हे हो आ हा 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 ही हा हा ला 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 हे हो ही हा. एग्जैक्टली. सो जो संगीत है ना, म्यूजिक, डांस, लाफ्टर, ये हमारा स्वाभाविक जो नेचर है, हमारा आत्मा का, जो हमारा ट्रू सेल्फ है, उसका पार्ट है. तो जितना ही हम जिंदगी में लाएंगे बढ़ाएंगे, उतना हमारा बैटरी हमेशा फुली चार्ज रहेगा और पूरी एनर्जी रहेगी, और यू कैन रियली मूव माउंटेन्स, राइट. मैं ना यहाँ पर कनाडा में आई वाज वर्किंग इन अ स्टोर, सो देयर लॉट ऑफ लाइक ओल्ड पीपल विजिट फॉर शॉपिंग, and then I was just talking to one of the ladies. She was close to 80 years old, and then she was like, isn't that, can we make a difference to the world? We are like small peanuts. I told the lady, ma'am, what I believe, the kind of energy we have in our Indian mythology in the past, so we have read and seen that we can move mountains. We have that kind of power, right? And that's the powerhouse you and me, we all are. The only thing is, we got to chisel out the so-called all the lenses about our own strengths and our own potentials, which have put here and blindfolded ourselves. That's the only blockage. We need to get rid of that. And then I tell you, I promise you. So if you can work that out, you can experience that. And then my mantra is be mad, पागलों की तरह हंसो, नाचो, गाओ, खुशियां मनाओ. जिंदगी जो है ना बहुत मस्त है, और इससे बेटर हमारा बाहुभाग है कि हमें ये ह्यूमन बीइंग का जन्म मिला और इसको हम सार्थक बनाना है, राइट. सो अगेन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सो हाउ टू recharge your battery instantly and get instant happiness. So another thing which I observed in my life, and I brought that practice also, is traffic signals. You and me have seen traffic signals on roads, who are driving, walking, right? तो वो ट्रैफिक सिग्नल का ना एक पर्पज है, राइट. और कुछ लोग जिन्होंने प्लान करा है ट्रैफिक सिग्नल, जो भी म्यूनिसिपैलिटी में रहे हैं या उस ऑफिसर्स रहे हैं, तो उनको पता है कौन सी क्रिटिकल जोन्स है जहां हमको वो ट्रैफिक सिग्नल डालना है, राइट. उसके इवन टाइमिंग सिग्नल के डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट जो क्रॉसिंग्स होती हैं वहां पर. सो द बेसिक पर्पज इज व्हाट ऑफ ए traffic red light signal is so that the vehicles come to halt, they stop, and the vehicles from other directions can move smoothly, and there is no chaos, right? There is no jam, there is nothing like which gets stopped and halted, and then there is no workability. So that's the purpose of a red light. You stop, right? And then you wait, and then when it turns yellow, you look, and then everything is okay. It turns green, you zip it, you zip your vehicle, and then you have a good smooth drive to your destination, right? Traffic signals. अब हम और आप ट्रैफिक सिग्नल में क्यों रुकते हैं, राइट? इंडिया में तो चलो देखिए, मैंने देखा है कुछ लोग तो रुकते हैं और कुछ लोग नहीं रुकते हैं. उनको लगता है यार क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है. उस वक्त हमें नहीं लगेगा क्या फर्क पड़ता है, हम जल्दी में हम भाग रहे हैं, क्योंकि हमको तो भागने, हमको तो रुकना आता ही नहीं भाई.
हमारा सर्वाइवल है, अरे लेट हो जाएंगे, वो कुछ बोल देगा, मैं सुन नहीं सकता हूँ, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, यू नो ऑल दो डा जो हमारे चलते हैं, हमको भगा रहे हैं। अरे हम इतने रिस्क ले रहे हैं, अपनी जिंदगी का रिस्क ले रहे हैं, अरे भैया अपनी आइडेंटिटी के सर्वाइवल के लिए अपनी लाइफ का रिस्क ले लेते हैं, क्या जरूरत है? कभी सोचे है रुक के ट्रैफिक सिग्नल पे, जब रेड लाइट पे मैं रुकता ना गाड़ी में, तो मैं यही सोच रहा होता हूँ। अब जो लोग रुकते हैं क्यों रुकते हैं? क्योंकि भाई चालान हो जाएगा, यू विल गेट अ टिकट, राइट? और हमारे यहाँ क्या है, वो पुलिस, देयर इज नो लाइक ट्रैफिक पुलिस हियर, राइट? यहाँ तो ऑटोमेटिक कैमराज है, वो कैमरा क्या करता है, अगर आपने कुछ भी ऐसा वॉयलेट किया है तो यू विल गेट अ टिकट। 2-3 टिकट्स मिली तो टिकट ही बड़े अच्छे माशाल्लाह $200-300 की होती हैं, मतलब तो ऑब्वियसली 10-15 हज़ार इंडियन करेंसी हो जाते हैं। तो बंदा सोचता है एक मॉनेटरी लॉस इतना बड़ा यार, तो उसके लिए हम रुकते हैं, राइट? क्योंकि पेनल्टी है। दूसरा, लाइसेंस आपका सस्पेंड हो सकता है, आप ड्राइविंग नहीं कर सकते 2 साल के लिए। सिमिलरली अब इंडिया में भी बहुत सारी चीजें इसकी पेनल्टीज हो रही हैं, राइट? तो अब जब हमारे जिंदगी में कुछ स्टेक पे हमने डाला, वी हैव समथिंग एट स्टेक, दैट्स ए कॉस्ट, राइट? और वो मॉनेटरी है और हमारा डर है कि हमारी वर्केबिलिटी ऑफ ड्राइविंग इफेक्ट हो जाएगी, तो हम रुकते हैं, हम फॉलो करते हैं रूल्स, ट्रैफिक सिग्नल को। लेकिन सेम चीज अब आप देखो कि जब मेरी और आपकी जिंदगी की बात आती है तो हम तो रुकते ही नहीं है, हम तो चल ही जा रहे हैं। क्यों रुके भाई? तो पेनल्टी क्या हमने पेनल्टी देखी है? क्या हमने वो चीजें देखी जो हमने स्टेक पे लगाया है? जब हम जहां रुकना चाहिए नहीं रुकते। मैंने बहुत हेवी पेनल्टीज दी हैं अपनी लाइफ में स्टेक पे। क्या नुकसान होता है? रिलेशनशिप छूट जाते हैं, राइट? पेनल्टी हेवी, डाइवोर्स होते हैं। हमें उस वक्त नहीं पता लगता, हम झल रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में सेपरेशंस होती हैं, फैमिलीज की सेपरेशन होती है, ब्रदर्स की, चिल्ड्रन की पेरेंट्स के साथ। Do you know that there is a cost and penalty to that also when we don't stop in our lives? There are suicides. People are in depression. Isn't it a huge cost and penalty? क्या सिर्फ वो एक चलान आ जाएगा 500-1000 रुपए का, वही पेनल्टी कर हम रूल्स फॉलो करते हैं? जब वो हम करते हैं तो यार ये तो जिंदगी है। मतलब इट माई हार्ट पेन्स व्हेन मैं भी सब ये करता हूं और जब मैं देखता हूं उसके बाद रेट्रोस्पेक्टली कि लाइक हाउ क्रिटिकल इज दैट। बट नाउ सिंस आई हैव गॉन थ्रू माई लाइफ एक्सपीरियंसेस, आई रियलाइज हाउ क्रिटिकल इज दिस, एंड दे आर मच मच बिगर पेनल्टीज of our life. So that's why first of all we need to see the impact of it. हम क्या उसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं, वो कितना हम मवाद और पस कैरी करते हैं, और उसके बाद ये लाइफ थ्रेटनिंग जब तक नहीं हो जाता हम रुकते नहीं है। मैंने अपने पिछले सेक्शन में ये बात बोली थी, ये जो आइडेंटिटी की रेस है ना, ओके आई अंडरस्टैंड ये जरूरी है, क्रिटिकल है, ये हमें दौड़ा रही है, हमारे को पुश दे रही है, बट हमको इसके साथ साथ इसमें अपने रूल्स तो लगाने हैं। नेचुरल स्वभाव जो हमारा है उसके रूल्स तो बनाने ना। तो इसके लिए अब मैं बताता हूं कि हमको लाइफ में अपने कैसे ट्रैफिक सिग्नल्स लगाने। आप अपना एरिया चुनिए, कोई रिलेशनशिप का एरिया है, किसी का फाइनेंस का एरिया है, किसी का बिजनेस का एरिया है, किसी का बच्चों को लेके एरिया है। बहुत सारे एरियाज हैं हमारी जिंदगी के। हेल्थ है, आजकल के टाइम में तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हेल्थ को लेके परेशान और कॉन्शियस हैं। सो आप एरिया जब चुनोगे तो आपकी वो पता लगे भी दैट्स माय क्रॉसिंग एरिया, जहां पर मेरी जिंदगी में क्योस हो रहा है, जैम हो जा रहा है, वर्केबिलिटी नहीं है और उसका मेरे पे फिर इंपैक्ट है। मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को हाइपरटेंशन हो रही है, मेरे को फियर हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, मेरे को फ्रस्ट्रेशन आ रही है, मेरे को गुस्सा आता है, उसका कोई अंत नहीं है, और गुस्से में फिर मैं कुछ भी कर देता हूं, राइट? तो ये सारी चीजें जब आप अपने डिफाइन करते हो एरियाज को, वहां पर आप देखते हो कि यहां मुझे यार ये लगाने हैं, अपने रूल्स बनाने, क्योंकि मेरी ये वहां पेनल्टी है, मेरी ये टिकट कट जाएगी, यहां पर आई विल गेट दिस बिग टिकट एंड दैट आई कैन नॉट अफोर्ड। सो अभी टाइम रहते ही अगर पहले से हमने संभाल लिया अपने रिश्ते, अपने अपनी लाइफ, हेल्थ, अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, हम लोनली हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग इस सिंड्रोम से गुजर रहे हैं, जिंदगी उनको अच्छी खूबसूरत नहीं लग रही है। तो क्यों ना मैं, आप, हम सब लोग मिलजुल के अगर हम ये
इस तरह से चीज़ें क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारे लाइफ की जो सो कॉल्ड डिस्चार्ज बैटरी हो जाती है, जो पावर सकिंग हो जाती है, इन सब चीज़ों की वजह से वो हम रिचार्ज कर सकते हैं अगर हमें रुकना आ जाए और हमें पता हो कहाँ कब रुकना है और कितने टाइम के लिए रुकना है। रेड लाइट, सो पुट दोस ग्रीन रेड ट्रैफिक सिग्नल्स at your areas of life, at your junctions and crossings, right? So I have been practicing that, and I'll tell you an example like how it worked for me, and then it really saved my relationship, and now it's a very beautiful one. And truly I am so thankful for all the gurus and everybody who taught me meditation and the techniques. So everybody has a great role to play, and yeah, perfect. So मैंने जब कनाडा मूव करा, so then एक न्यू कल्चर में आया, एक न्यू लाइफस्टाइल में आया, और obviously I am doing my masters again after 22 years. So there was a lot of stress about this whole change of place, of country, and my wife was also here, and then she was not expecting this whole thing, like there'll be loads and loads and tons of work to be done, and then obviously we are conditioned from India of having people, domestic help around us to work and then not do all these stuff, and then we had a good luxury life there. तो होता क्या, ये सब चीज़ें मेरे पे पहले इतना प्रेशर कि भाई यहाँ आके वापस ये सब चीज़ें करनी है, और मैं घर आता तो घर आके वाइफ पहले से परेशान होती और वो कुछ ना कुछ बोलती, और वो बोलती तो मैं क्या करता, बाय नेचुरली उसको समझाने के लिए लॉजिक देने शुरू कर देता, राइट? तो मेरा इमीडिएटली रिएक्शन क्या हुई, यार इसको तो समझ नहीं आनी है और इसने मुझे ऐसे तंग करना है, पहले ही मेरे पास इतनी बड़ी मुसीबतें, इतने सारे पहाड़ हैं, ये और मेरे पे डाल रही है, तो मैं उसको गलत कराना शुरू करता। मैंने उसको एग्जाम्पल्स दे के प्रूव करना कि नहीं यार मैं सही हूँ, ये तुम गलत हो, और उसके बाद वो चर्चा बढ़ती 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 एंडलेस हो जानी, और उसके बाद उसका वो छोटी सी चीज से शुरू होना और बहुत बड़ा बवाल बन जाना, लिटरली। एंड उसके बाद तो बस पूछो मत, यू नो। जब मैंने ये देखा उसके बाद मेरी जो हालत होती थी, राइट, मतलब इतना सारा गिल्ट, इतना सारा वो गुस्सा, मैं अपने आप से लिटरली नफरत करने लगता, यार मैं तो ऐसा हूं नहीं, वो उस पर ट्रिप पे चले जाना, गिल्ट ट्रिप पे, यार ऐसे कैसे हो जाता है मेरे से, राइट? मैं तो एक बहुत अच्छा, आई एम ए गुड गाय, राइट? सो वो जब उतना उसका प्रेशर बाहर से, देन आई स्टार्टेड लाइक दिस इज एन एरिया वेयर आई टू पुट ए रेड लाइट. सो देन व्हाट हैपेंड, हाउ इट ट्रांसफॉर्म माय दिस एरिया, लाइक जब भी मैं ऐसे आना, कोई पे आर्गुमेंट शुरू होनी, जैसे ही मैंने रिएक्ट करना, तो मुझे पता लगता है जैसे मैं रिएक्ट करता हूँ तो मेरे अंदर ना एक प्रेशर फील होता है, एक हैवीनेस आ जाती है, और एक बॉडी सेंसेशन बोलते हैं कि यार अब मैं इसके ऊपर अपना जीतने का और इसको हराने का उस पर आने लगा हूं. वो रेड लाइट मेरी कैच होती है. वो रेड लाइट कैच होने के बाद येलो लाइट, येलो लाइट इज व्हाट, टेक ए ब्रेक, स्टॉप एंड लुक. रेड के बाद येलो, लुक, लुक कहां, चेंज द प्लेस, गो इनसाइड द रूम एंड वेयर एवर, लाइक, एंड देन जस्ट get inside. Get inside mean time to scan. Time to scan मतलब what? वही मेरा माइंड का लेंस अभी वापस चेंज करना है. जब भी मैंने पहले बात करी कि अभी मैं उसको एक लेंस से देख रहा हूँ, नहीं यार ये गलत है, ये ऐसी है, इसकी तो आदत ही ऐसी है, इसने तो मुझे तंग करना है और ये समझेगी नहीं कभी, all that stuff. Instantly when I go inside and then I just change that lens and then I'm like, oh my god, again am I making her wrong? Again I am like, it's about righteousness, I am right, I am wise, I am like मोर सुपीरियर. सो वो सारे लेंसेज, अब वो सारे लेंसेज से मुझे मिल क्या रहा, अब मुझे मिल तो मेरी तो यार शांति नहीं है, मेरे को तो एकदम अनईजीनेस है, डिस्कम्फर्ट है, पूरी बॉडी सेंसेशंस में प्रेशर हो रहा है. तो क्या फायदा उन चीजों का? तो इमीडिएटली मैं दूसरा क्या लेंस ला सकता हूँ. जब भी मैंने 5 मिनट के अंदर जाके ब्रेक ली, देखा वापस उस इंट्रोस्पेक्शन में, या ओके फाइन, शी इज अ ह्यूमन बीइंग एंड देन शी इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ so much things which she had never expected. So who can I be? मेरा एज अ पार्टनर क्या रोल है? तो मैंने उस वक्त अपनी राइचियसनेस और उसको गलत ठहराना ड्रॉप करके एक लव का लेंस लगाया और येलो लाइट पे ये देखा, लेंस चेंज किया. येलो लाइट पे देखा, उसके बाद जब ग्रीन हुई तो गो एक्शन. ग्रीन मतलब एक्शन. रेड पे सेंस हुआ, स्टॉप, देखी, येलो पे स्कैन किया, इंट्रोस्पेक्शन, ग्रीन पे एक्शन. एक्शन क्या, बाहर आया, बाहर आके इमीडिएटली जब वो सारा कुछ ड्रॉप हो तो फिर सॉरी बोलना आसान हो जाता ना,
फिर आपकी ईगो नहीं होती, जो कि पहले 3-3 दिन सॉरी नहीं बोली जाती थी और उसके बाद घमासान चलता था कि यार मतलब ये क्या. विद इन फ्यू मिनट्स आई एम लाइक ओके, आई एम सो सॉरी, एंड देन यू हग ईच अदर एंड इंस्टेंटली योर बैटरी इज charged with full happiness and power, full self-expression, that action. So there is no trip, guilt trip, right? So exactly. So this had worked wonder, putting my traffic signals in my life, and whenever now, if I have these sensations, red signal is here in different areas, and then I go and then scan, introspect, and believe you, from few months, it has been so much fun into the relationship, so much of love, and we have never experienced that in like last so many years. Nothing happened to my wife, right? She is still the same, the way she was. Who I am is now fully charged battery with full power, full self-expression power, freedom. And आपने देखा है जब में आपकी जो है, जब आपकी बैटरी चार्ज होती है, फोन बैंक पे जाती है और फोन बैंक में लगाते हो, फोन बैंक से फिर वापस आपका फोन चार्ज है, आपके पास वो सॉकेट नहीं भी है. एग्जैक्टली. तो जो मेरी बैटरी चार्ज थी फुली, मैं फुल अपने व्यक्तिगत स्वभाव में, जो मेरी सतोगुनी आत्मा थी, मैं उसमें था, जिसमें प्यार एक नेचुरल स्वभाव है, गलत ठहराने दूसरे को. जब मेरी चार्ज बैटरी में वापस आया, हक करी, ऑटोमेटिकली मैंने उसकी जो ड्रेन्ड बैटरी थी उसको भी चार्ज कर दिया. तो वहां पर मैंने वो एक कहते हैं जो पावर बैंक का काम किया, उसकी बैटरी भी चार्ज होगी मेरे से. तो जब मेरी बैटरी चार्ज, उसकी ऑटोमेटिकली चार्ज होगी. वरना अगर मैं वेट करते रहे पहले, अरे यार वो ठीक हो, वो ठीक हो, वो ठीक हो, वो चेंज करे, वो अपने आप को चेंज करे, उसको कोई समझाए, अरे दैट डजंट वर्क एट ऑल. आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, एंड इन बिफोर, दिस इज लाइक माय सेकंड रिलेशनशिप, एंड माय वन रिलेशनशिप बिफोर आई हैव गॉन थ्रू अ डाइवोर्स, राइट. एंड देन पहले मुझे शर्म आती थी, है ना, बट आई एम लाइक दिस इज हाउ आई हैव लर्नड फ्रॉम इट. एंड देन वहां पर मैं ये नहीं करता था, अब जो कि मैंने अब इस रिलेशनशिप में ये चीजें करनी शुरू करी. So that's how I have created a beautiful relationship now, and that's the advantage of all these tips and techniques useful which I just got in my life, and from these basic observing outside into the world. You know, believe you me, I am not someone who is in a lot of ज्ञान. कोई मैं बहुत सारी रीडिंग नहीं करता, बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ता. हाँ, मुझे कोर्सेज अच्छे लगते हैं, वो मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग पढ़ते हैं अच्छी बात है, उनमें बहुत सारा ज्ञान है. बट कई बार क्या होता है, उसके साथ साथ हम टू मच ऑफ इन चीज़ों में हो जाते हैं. तो मैं कहता हूँ छोटी छोटी जब हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर वो अवेलेबल हो जाती हैं, जिससे हम अपनी लाइफ को इंस्टेंटली चार्ज कर सकते हैं. तो ये जो हमने आपको दूसरा बताया ट्रैफिक सिग्नल्स वाला, ये भी बहुत कमाल का है. तो इसी तरह से आप भी अपने अपने अलग अलग एरियाज में डालें. हाँ, अब बट ये ट्रैफिक सिग्नल्स डाल लिए तो इससे आपको एक्सेस मिल गया. एक्सेस मिल के आपने क्या किया कि वापस जब भी ट्रेन आउट कर रही हो तो एनी टाइम इंस्टेंटली आपने करी. सवाल ये है कि ये सब चीजें आप करनी कब शुरू करोगे, या मैंने कब करनी शुरू करी. दैट्स वेरी क्रिटिकल, यू नो. अब इम्पैक्ट देख लिया मैंने ना, अब वो कॉस्ट पे करके देख ली मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ की, हर चीज़ की. तो मुझे समझ आ गई चीज़ कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल है. इसलिए मुझे इस चीज़ को अपना ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाना है. तभी ज़िंदगी एक सेलिब्रेशन की तरह जी जा सकती है. और ये टूल्स को हम जब प्रैक्टिस करते हैं, बार बार माइंडफुल और अवेयर होते हैं, तो ये जो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं अभी, जो छोटी छोटी टेक्निक्स दी हैं, ये बहुत हैंडी हो जाती है. बिकॉज आपका माइंड इमीडिएटली रुकना आता है, उसको रुकना आता है, वो फिर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहता है, और उसके बाद फिर वो एक्शन में आता है. तो इसी तरह से जब आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको अश्योर करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप इस पर अपनी क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में. और आप इसी तरह से जब आप अपना बैठेंगे तो इसके ऊपर आप देखिए, थोड़ा ना चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि हाँ, जो आज ये विशाल से बातचीत हो रही है, अब उसने अपनी लाइफ में लाइक आई एम वेरी नेस्टी गाय, राइट. आई एम नॉट सो कॉल लाइक मेरे पीछे हैलो है और मेरे को कुछ ऐसा हो गया ना. बट मुझे अपने नेस्टी होने के साथ साथ मुझे अपना ट्रू स्वरूप नेचर का पता है. मैं हु आई एम,
राइट? व्हाट माई आइडेंटिटी इज, मेरी मैं क्या है वो जब आती है, वर्सेस मैं एक्चुअली कौन हूं, राइट? हु आई एम इज नथिंग, हु आई एम इज शून्य, हु आई एम इज सत्वगुणी आत्मा, ए प्योर ट्रू सोल. And when I immediately start that, right, getting into that mode of living a life out from the survival and creates celebration. Even the survival doesn't feel like survival, I tell you. That's only the karmas. I'm on this journey, and then there are karmas which I need to fulfill on, and then I'm in total acceptance of that in my true self. I am totally peaceful and totally happy, I'm in bliss. There is music all around, there is like, life is so freaking beautiful, right? So that's the experience I have that time, right? So exactly. So now I am just looking, to the timeline, because last time I remember, because I'm in a flow, I just go carried away, and then my timeline cross kar jata, so I am like watchful today. So it's a 1 hour session. So let's now get to revisit what we should be doing to train our mind so that it starts sensing, scanning, taking action, stops, looks, and then it goes, right? So these are the two techniques, and for that I will give you a simple exercise which you can practice at home. And so in this exercise what you do is, once we are in meditation, so we are into observation mode, we are into introspection, we are inside, right? And once into our life, we are into full activity, right? Dealing with everyday stuff and whatever comes at it, right? So all that survival mode is happening. So we are into a boxing ring, and then we are saving, we are like fighting life, right? So dance is one thing which helps you to train your mind with full of this activity, because when I talk about dance, so it's like dancing like that. No कि आपने कोई बॉलीवुड डांस देखा और मूव्स और स्टेप्स कॉपी करके आप उससे रिलेट कर रहे हैं, वैसे वाले डांस की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, वो भी आप करो. बट मैं जो डांस की बात कर रहा हूँ वो पूरी एनर्जी को चार्ज करने वाले डांस की बात कर रहा हूँ, जो ब्लॉड एनर्जीज हैं, और उसके बाद फिर एकदम से शट करना माइंड को, एकदम से रुकना है, हॉल्ट होना है, स्टॉप होना है. आपको याद है बचपन में मैं और आप हमने स्टैचू डांस किया है बहुत सारे टाइम. गेम होती थी, छोटे होते थे, खिलाते थे. बर्थडे में मेरे याद है जब मेरा बर्थडे होता था, मम्मी मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करती थी, तो मेरे फ्रेंड्स आते तो मम्मी सबको वो स्टैचू डांस खिलाती थी. चलो म्यूजिक लगाया, सब लोग डांस कर रहे हैं, स्टैचू हिलना नहीं है, जो हिल गया वो आउट, और जो नहीं हिला, जो वहां डटा रहा वो तो. बचपन में तो गेम थी, अब उसको एंजॉय करते थे, लेकिन उसकी अहमियत, जो उसकी एडवांटेजेस थी, वो अब समझ आ रही है. यार वो एक इतनी अच्छी ट्रेनिंग थी माइंड की. अगर उसको हमने रेगुलरली करा होता तो माइंड को एक शट होना आता, स्टिल होना आता, स्टिलनेस में जाना था, वो भी मेडिटेशन थी. उस टाइम मेडिटेशन नहीं पता कि भाई मैं ऐसे बैठ के और ध्यान में मुद्रा में बैठ के मेडिटेशन कर रहा हूँ, नहीं. अरे वो भी कमाल की मेडिटेशन थी, बट अब मैं उसको देख सकता हूँ, राइट? तो एक मैं आपसे डेमो करता हूँ किस तरह से वो हमने मेडिटेशन टेक्निक में अपने माइंड को ट्रेन करना है, जिसमें हम उसको शट करने के लिए और स्टिल होने के लिए ट्रेन करेंगे, फ्रॉम फुल एक्टिविटी टू एकदम से हम उसको कट कर सकें. ताकि बहुत सारा गुस्सा आ रहा है, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन आ रही है, एकदम से पागल हो रहे हैं, और एकदम से रुकना, खटाक करके हम उसको स्टॉप कर सकें और रुक सकें, और इमीडिएटली अंदर जाके इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, और वापस अपनी लाइफ में फुल बैटरी के साथ ऑपरेट कर सकें. ओके, सो वील बिगिन नाउ. Yeah. So I just put a loud music. So आप अपने हिसाब का म्यूजिक लगा सकते हैं. एंड इसमें क्यू, जो क्यू है, टिप किया है, आंखें बंद और फुल्ली अपने आप को एग्जॉस्ट करना है, मतलब लिटरली इंटेंशनली थकाना है, राइट? पूरा जोर लगाना है.
ओके। और जैसे ही उसके बाद जब आपको लगे पूरे थक गए, एक से जहाँ हो जैसे हो रुक जाना है, कोई एक्टिविटी उसके बाद नहीं चाहिए। ऑलराइट, complete stillness. Don't have to do anything. Just be a total observer. Don't react. Don't even try to control your breath. Just let it happen. Whatever is happening, be an observer. एक दृष्टा भाव से, एक साक्षी भाव से बस देखते रहे। और जो भी हो रहा है, जो भी बॉडी सेंसेशंस हो रही है, कुछ पसीना आ रहा है, कुछ खारिश हो रही है, कोई इचिंग हो रही है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने कोई रिएक्शन नहीं देनी है। विचार आ रहे आएंगे, चले जाएंगे, आप कुछ मत करें, क्योंकि सब कुछ अनिश्चय है। लॉ ऑफ इम्परमानेंस, नथिंग इज परमानेंट। This too shall pass. But you and I have to just keep observing. That's the trick. And once your mind has stayed stable into this for some time, again, so you're going back again to the music. Sorry, because I am today alone, so I had to operate the system. That's why I had to like stop it. And exactly. So if you can keep doing it continuously, right? And again, once I play the music on, and then I do it for like 5 minutes, then do the stillness part, the statue part, the silence part for 2 minutes. Keep continuing it. And if you can do this for half an hour, that'll be excellent, right? And after that, you can like sit down, lie down for 10 minutes. It's actually a yoga, but in this yoga, you're not training your body muscles, but you are actually training your mind's muscles. Believe you me, it's so effective. This is also a part of yoga. Meditation and yoga cannot be separated. There's always yoga, dhyan, meditation.
they are just part of the same thing, right? So guys, you see like how my energy, like how my breath was, because I had totally shut off my mind and I was not concerned कि मैं कैसा दिखूंगा. मैं यहाँ पर अपने दिखने के लिए नहीं हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ. हाँ, आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्वियसली मैं उसमें मेरे को ध्यान रखना पड़ता है, कॉन्शियसनेस रूम का भी थोड़ा सेटअप है. बट द पॉइंट इज, जब आप अपने साथ होंगे तो आपको कोई देख रहा नहीं रहा, तो आप पूरा अपने मन को तोड़ना है. कि पता क्या है, मन को तोड़ना, मन की जो सीमा है, मैंने पिछली बार ही बोला था, जब तक उसको नहीं तोड़ेंगे हम इस चीज के अंदर मैस्टरी नहीं कर सकते. वी कैन नॉट मैस्टर दिस until unless we train our mind to really stop and feel tired. Exactly. हमारी आइडेंटिटी भी जब टायर्ड फील करेगी, फ्रॉम गुस्सा, फ्रॉम लोगों को गलत ठहराना, फ्रॉम गलतियां निकालना, क्रिटिसाइज करना, कुछ भी ऐसी चीजें करना जिससे हमारी एनर्जी डिप्लीट और ड्रेन होती है. और जो हमारा स्वाभाविक तरीका है, जब हम अपनी आत्मा से जिंदगी जी रहे हैं, तो आपकी एनर्जी कभी भी ड्रेन नहीं होएगी. मेरा आपसे 100% से भी ज्यादा का वादा है. जो योगी मुनि हुए, जो लोग जाके हिमालयस पे ऊपर जाके मेडिटेशन सब चीज करते रहे, मतलब उनमें इतनी पावर है. आई नो सम सेंस जो बिना एनेस्थीसिया के अपने ध्यान में जाके अपनी बॉडी को दे गेट ऑपरेटेड, वो चीर करा सकते हैं अपनी बॉडी का, ऐसी पावर है. सो हम लोग भूल गए हैं वो हमारी जो एक्चुअली जो पावर एनर्जी है, जो हमारी बैटरी की पावर है ना, वो ये फोन की बैटरी से बहुत बड़ी है. तो इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है. फोन की बैटरी भाई साहब चार्ज हो नहीं हो, हम सर्वाइव किए थे ना मोबाइल फोन के बिना. पहले भी हमारे जो दादा दादी की जनरेशन थी, मॉम डैड की जनरेशन थी, वो उन्होंने भी तो सर्वाइव किया ना कितना ब्यूटीफुली. आज हम सब बात कर रहे हैं वही संस्कार, वही पुराने वैल्यूज. जितने भी मैं टॉपिक्स और लेक्चर सुनता हूं यहां पर भी, तो सब लोग उसी की बात कर रहे हैं. तो हम कब जागृत होंगे, कब अवेयर होंगे, कब हम अपनी इस नींद से, सोकॉल्ड बेहोशी से उठेंगे. सो मेडिटेशन ये एक ऐसी चीज है जो नींद को तोड़ती है, बेहोशी को तोड़ती है. मैंने भी अल्कोहल ली है पहले, मैंने वो सब एक्सपीरियंस करके देखा है जिंदगी, क्योंकि अंदर मन तो चंचल है ना बात. लेकिन मैंने जब देखा कि वो सब चीजों के बिना की जो लाइफ की बैटरी चार्ज होती है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है. सो जब मैं पूरी तरह से इस ध्यान में उतरा, मेडिटेशन में, मेरे को तलब ही नहीं है किसी चीज की, बिकॉज मैं इतनी होश और अवेयरनेस है. मुझे लगता है यार क्या सही और क्या गलत है मेरे लिए, मैं चुन सकता हूं. मैंने शरीर में क्या डालना है, मैंने अपने थॉट्स में क्या डालना है, मैं चुन सकता हूं. वो मेरे पास एक एक्सेस है इसकी वजह से, और वो मेरे और आप सबके पास आ सकता है. कोई मुश्किल नहीं है. मैं कोई इसके लिए मैंने कोई PhD नहीं अभी कर ली. हाँ, बट मुझे लगता है कि मुझे ये जो हमारी कार्मिक थ्योरी है, अकाउंट है, जो भगवान की जो हमारा चला रहा है यूनिवर्स एनर्जी, उसकी जो ऐप है, उसके अंदर इतना सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, उसके ऊपर करनी चाहिए. लेकिन अभी उसमें टाइम है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज समथिंग सो ब्यूटिफुल एंड आई जस्ट लव इट. आई लव डूइंग इट, प्रैक्टिसिंग इट. मुझे लगता है ऐसे क्लब्स होने चाहिए. मतलब तुम फैमिलीज के साथ जाओ, मतलब वहां पर टिकल करो, हंसो, जिब्रिश करो. मतलब मैं भी इंडिया में था, वी हैड किटी पार्टीज, वी यूज्ड टू गो सिंग, डांस, हैव ऑल मेक पार्टीज एंड ऑल दैट स्टफ. बट देन जब मैं इसमें उतरा हूं तो मैं कहता यार इसमें भी तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो सकती है. क्यों ना इसी की क्लबिंग शुरू कर दो, इसी चीज की किटियां शुरू कर दो यार. तो देखो फिर मजे जिंदगी के, राइट? ओके, सो ये मेरा आपको टिप था. सो आज जो सेशन को वापस रिकैप करता हूं कि जो हमने बात करी इंस्टेंटली अपनी बैटरी कैसे चार्ज करनी है. तो मैंने आपको ये टेक्निक्स दिया, सेंस करना, स्कैन करना, और उसके बाद एक्शन, रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट. ये दो जो हमारी लाइफ की रोज की जिंदगी में हम देखते हैं, तो हम अपना जो मन का लेंस टेस्टिंग है वो करें. और जब हमारी एनर्जी डिप्लीट हो, जब हमारे को अपनी स्वाभाविक नेचर से हम बाहर जा रहे हैं, तो हम इंस्टेंटली अपना लेंस चेंज करें माइंड का, और अपना स्वाभाविक रूप वाला लेंस लेके आए, जो कि जिसमें हमारे पास प्यार है, शांति है, शक्ति है, आनंद है, ज्ञान है. उससे जिंदगी के जो भी एक्शंस लें, और फिर नज़ारे बहुत सारे खूबसूरत. तो आज के सेशन में लास्ट में मैं ये एक
टिप दूंगा। मेरा एक वो पेज है जिसपे मैं लिव फ्री टिप्स की बात करता हूँ, विशाल जैन। तो आज का टिप ये है कि हम स्माइल को कंटेजियस कैसे बना सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को जो हमारे संपर्क में है उसको हम कैसे उसके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान ला सकते हैं। हमारे यहाँ नॉर्थ अमेरिका में आई हैव दिस लव फॉर दिस कल्चर बिकॉज व्हेन यू आर बीन वॉकिंग वी डोंट डू दैट फ्रीक्वेंटली इन इंडिया, राइट? Because we don't greet people on the streets and saying, hi, how are you doing? Have a good one. Like, you know, this smile. So here, everybody does that. And I just love that. So, and exactly. So then, you know, what I found was, मैंने ना यहाँ थोड़ी देर के लिए अपना जहाँ मैं वर्क पे जाता था, so I started greeting people like that, right? और चाहे वो किसी से कॉल सेंटर बात कर रहा हूँ, so I started adding like, you know, hi, how are you doing, right? I just smile and another person smiles back. And then I started, have a smiling day. Have a great smiling day. Oh man, look at that person. बंदा immediately, normally उसको आदत है, have an awesome one, have a good one सुनने की। जब मैं स्माइलिंग होता हूँ, चेहरे में वैसे ही स्माइल आ जाती है, राइट? तो मैंने सोचा कि यार अल्टीमेटली जब सारा कुदरत हमारे आसपास प्लैनेट पे, हम एक दूसरे के लिए कुछ तो कर सकते हैं ना। ये तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट फ्री यार, इसमें तो पैसे भी नहीं लगेंगे, राइट? तो मैं भी अपने आप को बड़ा कंजूस मानता हूँ, लेकिन बट उसके लिए मुझे यह है कि यार इतना बोलने से अगला बंदे के चेहरे पे मुस्कान आती है। अगर आसपास हम जाते हैं, हमारे आसपास पूरा लोग हंसते हैं, तो हमारी ऑटोमेटिकली हमारे पास पावर बैंक्स हैं, राइट? हम ऑफ है, मूड सैड है, जब बाहर निकलेंगे मुस्कुराते खिले चेहरे देखेंगे तो हमारे नेचुरली उसमें स्पेस में, हमारे ऑरा में, हमारे इन्वायरमेंट में वो हमारी बैटरी चार्जर्स का काम करेंगे। यहाँ पर ना टेस्ला है, इलेक्ट्रिक कार्स है, सब जगह बैटरी चार्जिंग पॉइंट्स हैं, हर जगह, यू नो, पार्किंग में, बेसमेंट्स में, फिर में। तो हाउ अबाउट प्लैनेट में हम ये बैटरी चार्जिंग पॉइंट्स लेंगे जो एक दूसरे को हम मुस्कान दे सकें, एक दूसरे को हंसा सकें, उनके चेहरे पर मुस्कान ला सके। इमेजिन करो, तो जब हैप्पी प्लैनेट होएगा, हैप्पी पीपल होंगे, स्माइलिंग, तो लाइफ अपने आप में एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होगी, है कि नहीं? मैं तो ये मानता हूँ और मैं इसी मिशन पर निकला हूँ कि मुझे अपने लिए भी वो करना है और मैं वो कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ। So, exactly. So that's how it is for me, and you have a choice if you want to build that up और अपने आसपास सराउंडिंग्स को करोगे। So यकीन मानो, प्लैनेट में हम जो सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जब हैप्पी पीपल होंगे ना, तो अपने वो प्लैनेट का ख्याल रख लेंगे। तो हम सब, मैं और आप मिलके, लिटरली अगर हम बात करते हैं तो हम इस ह्यूमैनिटी, इस प्लैनेट पे ऊपर लाइफ को सेलिब्रेशन के कॉन्टेस्ट से क्रिएट करते हैं। और जो एफर्ट संजीव जी और उनकी टीम कर रही है, और मैंने भी उसके साथ पार्टनर करके आज इन फेसबुक लाइव के मीडियम से ये आज यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, तो मैं आशा करता हूँ, आई एम वेरी होपफुल एंड डेफिनेटली you all who are here will definitely take this up and keep smiling, keep laughing, हंसते रहो, हंसाते रहो, प्यार बांटते रहो, सबका मंगल हो। And once again, I'm going to end this session, and everybody, thank you so much who all were there, right? Who all were there till the time, at 2 a.m. in the midnight from India and anywhere else from the world. Really, my honor, my privilege to be here, right? So, la 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 le he 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 ho 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 ha 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 ha, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो, हे 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 हो हो आ हा 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 हु ही ही हो हो। Much love, thank you, namaste, good night, Shabba Khair, see you next time, catch you later, bye for now.